Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we will learn about the biology and the control of common vertebrate pest in agroecosystem of Pakistan. In this topic we will learn about the vertebrate rodents and the two vertebrate birds pest. And the two vertebrate rodent pest wolves, white-footed and rare mice, and the two birds pest are common crow and sparrow. Here is the description of wolves. The common descriptions of wolves. The meadows wolves, also called meadow mice, field mice, belong the genus Microtus. Wolves are compact animals with stocky bodies, short length, short legs, and short tails. And their eyes are small, and their eyes are partially hidden, and a wool under fur is dense and covered with thick long guard hairs. जो वूल्स हैं, मेडोज वूल्स हैं, उनकी बॉडी जो है उनकी शॉर्ट टेल्स होगी, स्मॉल राउंडेड बॉडी होगी, स्मॉल राउंडेड ईयर्स होंगे और माउथ साइज इसके विद रेडिश ब्राउन फर होगी. इसी तरह जो मैडो वूल जो है मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड माइक्रोटस स्पीशीज है. इट्स टोटल लेंथ अबाउट 5 inch and 7.5 inches. Its fur is grey to yellowish brown, and its underparts are grey, at time washed with silver or buff, and the tail is bicolored. Here is the prairie wool, and the prairie wool is 5 to 7 inches in total length. इसकी total length जो है वो 5 to 7 inches होती है. इसकी fur जो है वो grey color, grey से dark brown color में होती है. Its fur is grey to dark brown mixed with grey, yellowish or hazel tipped hairs, giving it a peppery appearance, and the underparts are grey to yellow grey. It's the most common wool. एंड प्रेरी वूल जो है वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स के अंदर पाएगी, जैसे लाइक ओल्ड फील्ड्स हैं, मार्श लैंड्स हैं या शॉर्ट ग्रासेस हैं. इसी तरह जो इनका ताल्लुक़ है वो मैडो वूल के साथ भी होता है, और ये मोस्टली ड्राई हैबिटेट्स के अंदर भी पाई जाती हैं. एंड द थर्ड वन इज़ माउंटेन वूल. Mountain wool is about 5.5 to 8.5 inches in total length. Its fur is brown washed with grey or yellow hairs with some black tip. Its feet are generally silver grey and body underparts are whitish and tail is bicolored. इसकी भी टेल बाई होती है और 5.5 से 8.5 इंच टोटल लेंथ है. फर जो है वो ब्राउनिश वास्ट कलर होती है ग्रे के साथ. इसी तरह जो माउंटेन वोल जो है वो अल्पाइन मेडोज और ड्राई ग्रास लैंड के अंदर पाया जाता है. इसी तरह ये इसके भी मेडो वोल के साथ एसोसिएशन होगी और जनरल तौर पे ड्राई हैबिटेट्स के अंदर रहेगा. नेक्स्ट है वाटर वूल. वाटर वूल इज़ द लार्जेस्ट माइक्रोटस स्पीशीज एंड इट्स टोटल लेंथ इज़ 8 to 10.5 inches. It has greyish brown fur with grey underparts and are washed with white or silver. ये भी सबसे बड़ी स्पीशीज़ हैं और इस तरह 8 से 10.5 इंचज़ तक इसकी टोटल लेंथ है और ग्रेइश ब्राउन फर होती है और ग्रे अंडर पार्ट्स होंगे और टेल भी इसकी बाई कलर्ड होती है. और ये वो वाटर वोल जो है प्राइमरी सेमी एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर पाया जाता है. इसी तरह जैसे लाइक स्ट्रीम्स हैं, बैंक्स हैं, लेक्स, शोर्स हैं, एल्पाइन मेडोज़ हैं. Wolves occupy a wide variety of habitat. They prefer areas with a heavy ground cover of grasses like plants or litter. जब दो स्पीशीज़ एक जगह पे पाई जाएँ, एरिया पे पाए जाएँ, तो ये डिफरेंट हैबिटेट को ऑक्यूपाई करते हैं. Wolves जो हैं wolves have also been known to occupy orchards and cultivated field areas. And here is some food habitats of the wool. The wool eat a wide variety of plants, most frequently eat grasses, forbs, but in late summer, fall they will store seeds, tubers and bulbs to eat during winter months.
ये मोस्टली फ्रिक्वेंटली जो है ग्रासिस को, फॉप्स को ईट करता है, और समर के बिल्कुल एंड पर इसको, समर के बिल्कुल लास्ट पर या फाल के लास्ट पर इसको स्टोर करेगा, सीड्स को, ट्यूब्स को और या बल्ब्स को। फिर उस मंथ के विंटर के बिल्कुल विंटर मंथ्स के दौरान इसको ये ईट करेगा। और इस तरह जो वूल्स हैं वो स्नेल्स को भी, इंसेक्ट्स को भी और कैरियंस को भी ये ईट करते हैं। एंड हियर इज अ जनरल बायोलॉजी ऑफ दिस पेस्ट, वर्टिब्रेट पेस्ट। जनरल बायोलॉजी ऑफ द वूल्स आर दे आर एक्टिव डे एंड नाइट, ईयर अराउंड। साल के करीब जाके ये दिन और रात दोनों में एक्टिव हो जाते हैं। दे डू नॉट हाइबरनेट। होम रेंजेस आर यूजुअली 1/4 acres or less. However, their size may vary with season, population dynasty, habitat and food supply and other factors. कुछ फैक्टर्स होते हैं या फिर फूड सप्लाई की वजह से, या फिर पॉपुलेशन डायनेस्टी या हैबिटेट, इसके साइज और इसकी तादाद जो है वो पॉपुलेशन, सीजन और डायनेस्टी, हैबिटेट और फूड सप्लाई, यहाँ पे कुछ अदर दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर वो ये डिपेंड करती है। इसी तरह वूल्स जो है कंस्ट्रक्ट मैनी टनल्स एंड सर्फेसेज रनवे विद न्यूमरस बरो एंट्रेंस। अ सिंगल बरो सिस्टम में कंटेन सेवरल अडल्ट्स एंड यंग। एक बरो सिस्टम के अंदर जो है वो कई अडल्ट्स एंड यंग जो है वो रह सकते हैं। इस तरह वूल्स जो है वो ब्रीडिंग, इसका सीजन जो है वो थ्रू आउट द ईयर है। Wolves breed several times throughout the year. After gestation period of about 21 days, a litter of up to 11 are born. गेस्टेशन 21 डे के गेस्टेशन पीरियड के बाद तकरीबन 11 जो है वो जो छोटे बच्चे जो हैं वो बर्थ उनकी होती है। इसी तरह जो यंग हैं, young are weaned by the time they are 21 days old, and the females are sexually mature at 35 to 40 days. जो फीमेल जो है वो 35 to 40 days के बाद जो वो सेक्चुअली मेच्योर हो जाती है। इसी तरह अल्टरनेटिव मेथड्स हैं इसके कंट्रोल के लिए। हेयर इज सम अल्टरनेटिव मेथड्स फॉर द कंट्रोल ऑफ वूल्स स्पीशीज। In the non-lethal, the alternative methods for the control are non-lethal and lethal. In the non-lethal, exclusions and cultural method, repellents and live traps are used. And then lethal, toxicant, fumigants, traps, shooting are used. Here is an exclusions. Exclusions, hardware cloth cylinders with mash size of 1/4 inches or less can be used around seedling and small trays. हार्डवेयर क्लॉथ सिलेंडर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका साइज़ जो है वो 1/4 इंचज़ होता है, इससे भी कम हो सकता है। सीडलिंग के दौरान या स्मॉल ट्रेस के दौरान जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और bury with the wire at least 6 inches to discourage the wools from digging under the cylinders. और इसी तरह जो है एटलीस्ट 6 इंचज़ का डिस्करेज करेगा। जो वायर जो है वो इस्तेमाल की जाएंगी 6 इंचज़ तक इसको ख़त्म निकालने के लिए, इसको रिमूव उसके ताप को रिमूव करने के लिए, डिगिंग के लिए। इस तरह सम कल्चरल मेथड्स हैं। In the culture method, they are eliminated from the crops, lawns and cultivated, and soil cultivation destroy cover and burrows. And here is the repellents. Repellents theorem may be useful to for short term productions. Theorem जो है जो है वो शॉर्ट प्रोडक्शन के शॉर्ट टर्म थोड़े से वक्त के लिए प्रोडक्शन देता है। इस तरह थ्योरम जो है वो कमर्शली अवेलेबल होता है फंगिसाइड के साथ। इसी तरह ये जब अप्लाई करते हैं प्लांट के ऊपर तो ये प्लांट को भी टेस्ट देता है, मतलब जब भी अप्लाई करेंगे तो ये टेस्ट इसका उसका चेंज कर देगा। थीरम जो रेपेलेंट्स हैं। इस तरह लाइव ट्रैप्स है, कुछ लाइव ट्रैप्स यूज़ किए जाते हैं उसी वक्त उसको कैप्चरिंग करने के लिए। एट द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स यू विल सी द सम लाइव ट्रैप्स। And in the lethal methods, we will discuss about the toxicants, fumigants, traps and the shootings. Here is the first toxicant. Intoxicant, we will discuss about the zinc phosphate and anticoagulants based beds. And the anticoagulant beds and the zinc phosphide. The zinc phosphide approximately 2% concentration is available in pellet and grain beds formulations. This toxicant can be produced at rate of 6 to ton per acre or placed in runway
एंड बरो ओपनिंग। इसको जब भी जिंक फॉस्फेट की कंसनट्रेशन लेते हैं वो 2% कंसनट्रेशन होती है, और इसको जब भी लें पायलट के साथ और ग्रेन बेड के साथ ये अवेलेबल हो सकता है आपको। और टॉक्सिकेंट जो है ब्रॉडकास्ट है तकरीबन 6 to 10 एकड़ जो होगा, या फिर इसको जो बरो ओपनिंग है उसके ऊपर, इसके स्टार्टिंग के ऊपर उसको आप लगा सकते हैं। एंटीकोगुलेंट जो है जासू कैन ब्रॉडकास्ट, इसको भी आप बरो के पास लगा सकते हैं और इसको बेड कंटेनर्स के अंदर हम रख सकते हैं। These बेड्स कैन बी glued टू द इनसाइड ऑफ वाटर रेपिलेंट पेपर ट्यूब्स। ये बेड जो है इसको ग्लू किया जाता है वाटर रेपिलेंट पेपर ट्यूब्स के अंदर। इसी तरह फ्यूमिगेंट्स हैं। द फ्यूमिगेंट्स आर यूजुअली नॉट इफेक्टिव फॉर द कंट्रोल ऑफ वुल्स। इसके कंट्रोल के लिए फ्यूमिगेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल या इफेक्टिव नहीं है। एंड ट्रैपिंग सिस्टम, सम ट्रैप्स आर यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ दिस vertebrate pest. The traps are only effective for the controlling small whole population. Only थोड़े से population को control करने के लिए इसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं। Mouse snap traps baited with peanut butter oatmeal mixture और एप्पल स्लाइसिस में भी इफेक्टिव। अब जब भी कोई बेटिंग ट्रैप्स इसने बनाना है तो इसके ऊपर आपने पीनट बटर का मिक्सचर ऐड कर दें या फिर एप्पल के स्लाइसिस उसके ऊपर लगा दें, तो जब भी वो वूल जो है अपने बरों से बाहर आएगा तो उसको वो ईट करने की कोशिश करेगा। जैसे वो उसको ईट करेगा तो वो उसका ये जो वायर्स होती हैं जो ट्रैप है उसके अंदर वो फंस जाएगा। जब फंसेगा तो वहाँ से उसकी डेथ के चांसेस खत्म हो जाएंगे, उसके रिमूवल के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज़ शूटिंग। शूटिंग इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर द कंट्रोल ऑफ वूल। शूटिंग को हम इसके लिए अप्लाई नहीं करते, शूट इसको हम नहीं करेंगे। एंड here is a video of wool trapping system. Using phosphate to deal with them. I don't like using poison, so I'm going to use traps. These voles are larger than a mouse, so I'm not going to use a snap trap designed for mice. I'm going to use one designed for rats. You can use any snap trap that you like. I prefer these Made to Catch brands. They've worked really well in the past for me on voles. To set it, I place a little peanut butter right on the pad, pull back the kill bar, and then latch it into place. What I like so much about these snap traps is they have a jagged edge. That helps hold them in place, and it's a powerful spring so they die very quickly. The vole will come out of this hole. Want to get that bait? Step on the trigger, and you got them. Now since there's so many holes, I'm going to use 3 traps, put them on the outside of each burrow. Now that the traps are all set, the last thing I'm going to do is cover these up with a tote. That will keep birds from getting caught and provide security for the voles to come out. Good morning, it's time to go check our vole traps. Now this is 2 days after we set them up. I checked yesterday, but we didn't have anything. Sometimes with this trapping method, you just have to give it time. We have our tote here. This morning there were deer in my yard, so I'm glad we covered them up and didn't catch deer on the nose. Let's flip it over and see if we got some voles. Hey, look, 1, 2 voles and then 1 trap that was not set, but there sure are a lot of ants on that one. Overall, this was really successful. 2 down and several hundred to go. You can see why I use a rat trap. These are not small animals. To release it, you lift up the kill bar, give it a little flip. Now I'm going to continue setting up the traps because it can work. It doesn't always work though, so if you're having trouble, move the traps around, try some different bait. And this is just one tool in your fight against the voles. In future videos, I'll show you other methods for getting these rodent pests. I'm posting between 4 and 5 rodent trap videos a week, so if you want to see how to catch mice, rats, squirrels, chipmunks, moles, voles, and gophers, stay tuned. ये सभी जो है वो गोफर्स के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। Here is the lethal control. In the lethal control, you will learn about the toxicant, and the 2 things are discussed: anticoagulant and zinc phosphate. And here is the white-footed deer mice. The white-footed deer mice is nearly identical in appearance. तकरीबन identical होते हैं. Identification on the basis of habitat. इसकी identification जो भी होगी तो वो habitat की base पे की जाती है. The head and body of the mouse are 3 to 7 inches in length. Head जो है वो 3 to 7 inches in length होता है. Large eyes होती हैं, large ears होते हैं. इसी तरह ब्राउन फर होगी टॉप के ऊपर और वाइट अंडरपाथ होगी, अंडर बनीथ होगी. इस तरह जो होंगे
लॉन्ग बाई कलर टेल होगी, डार्क ऑन द टॉप एंड द वाइट ऑन द बिलो. Adult weight average between 0.5 to and 3 ounces. The fur is usually soft and full with coloration, varying with habitat. जिसकी बॉडी वेट जो है वो 5.5 से 3 ounces तक हो सकता है. आपको पहले बताया था ounces कैसे किस तरह कन्वर्ट किया जाता है इसको. जो फर जो होगी वो सॉफ्ट होगी और फुल कलरेशन होगी. और जैसे फॉर एग्जांपल litter pelage is found in arid desert habitat, which grayish is in cool wood habitat. The ears are large relative to the rest of the body, are covered with fine ears. Here is the diagram of the deer mouse and the white-footed deer mouse, which are most similar. And deer mice, white-footed mice are found in variety of habitats. बहुत सारे habitats के अंदर पाया जाता है. deer mice जो है वो widely distributed होता है, but does not regularly occur in moist places. but लेकिन moist places के अंदर regularly नहीं पाया जाता है. white-footed mouse जो है मौजूद होगा लार्ज रीजन के अंदर, लेकिन ये डीप वुडलैंड और बशेस एरियाज के अंदर मौजूद होता है. द फूड हैबिटेट ऑफ द white-footed deer mice, the diet of the white-footed and deer mice includes seeds, nuts, berries, fruits, insect and other small invertebrates and carrions. ये फ्रूट्स को, बेरीज को, नट्स को, सीड्स को ये ईट करेगा और स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स को भी ये खा सकता है. इसी तरह कुछ जनरल बायोलॉजी है. जनरल बायोलॉजी, द रेयर माइस आर लार्जली नक्टर्नल एंड एक्टिव थ्रू आउट द ईयर. ये नक्टर्नल होते हैं, थ्रू आउट पूरा साल एक्टिव रहते हैं. but they do experience periods of torpors involving a reduction in food temperature for several hours. इसी तरह इनका जो ब्रीडिंग सिस्टम होता है वो थ्रू आउट द ईयर होता है, बट मोस्ट कॉमन जो होता है वो मार्च से थ्रू अक्टूबर तक होता है. एंड इट्स gestation period about 21 to 27 days and they produce 3 to 4 litters per year. हर साल में gestation period जो है वो 21 से 22 दिन का होता है और ये प्रोड्यूस करते हैं 4 litters per year. And here is some alternatives for the control of non-lethal control of wolves and non-lethal and lethal. In the non-lethal exclusion culture method, frightening, repellent, slide traps are also used for capture the white-footed deer mice. In the lethal, toxic and fumigant traps and shooting are also used. In non-lethal, the exclusion rodent-proof construction is the best method for the exclusion for mice. mice के exclusion के लिए, उसको remove करने के लिए जो rodent-proof constructions हैं वो best method होता है इसके लिए. और तमाम जो आल ओपनिंग जो होगी वो 1/4 इंचज़ से अगर वो बड़ी है तो उसको हम सील कर देते हैं वायर की मदद से. जो वायर होती है उसकी मदद से हम उसको तमाम ओपनिंग जो होगी इसको हम सील करेंगे. और अगर तमाम जो ओपनिंग होगी वो 1/4 इंच से अगर जो लार्जर है या छोटी है तो उसके लिए हम तमाम ओपनिंग को वायर की मदद से सील कर देते हैं. इसी तरह जो फेंसिंग है वो फेंसिंग भी प्रोटेक्ट करती है सीड गार्डन प्लॉट्स को और बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ को. इस तरह हमें करना है सॉइल के नीचे बिल्कुल जो बरों को प्रिवेंट करने के लिए हम एक्सक्लूजन मेथड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. इन द कल्चरल मेथड and here is the cultural method of the for the control of white-footed mouse. And in the cultural method we will discuss about the rodent-proof containers and nesting opportunity. The food items should be stored in rodent-proof containers. जब भी food जो है वो स्टोर की जाती है उसको हम rodent-proof containers के अंदर ही स्टोर करते हैं. इसी तरह तमाम जो नेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मटेरियल्स होते हैं, उसको भी हम रिमूव या फायर प्लेसेस के ऊपर सील्ड कर देते हैं. व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज, जब वो इस्तेमाल नहीं हो रहे होंगे तब उसको हम उसको सील कर देंगे. या फिर जो नेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको भी हम वहाँ से रिमूव कर सकते हैं नेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़, ताकि जब नेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी तो वहाँ पर इसके आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे. इसी तरह जो रेपिलेंट्स हैं, फ्राइटनिंग है, फ्राइटनिंग इज़ आल्सो नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस फॉर द कंट्रोल ऑफ white-footed and deer mice. And but the repellents in the repellents naphthalene and dichlorobenzene is used for the control of this rodent. The mouth flags or mouth balls may be effective but are not registered for the repelling mice.
माइस को रिपेल करने के लिए इतनी इफेक्टिव नहीं है, बट माउथ फ्लेक्स या फिर माउथ बॉल्स जैसे कि लाइक नेफ्थलीन्स एंड पैराडाइक्लोरोबेंजीन जो है वो इस्तेमाल की जाती है, बट इतनी इफेक्टिव नहीं है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. And live traps, automatic traps designed for live capture and effective. In the previous slide, you watched the video of the trapping system of the previous rodent. And the lethal, in the lethal toxicants and fumigant and trap shooting are used. In the toxicant, you will learn about the anticoagulant paste containing diphencycline and the bromadiolone are used, and the toxicant in the loose grain paste formulation are also used. The loose grain paste formulation or skewed paraffin wax baits ब्लॉक्स आर आल्सो इफेक्टिव. इसके लिए जो है वो लूज ग्रेन बेट फॉर्मुलेशन जो है वो इफेक्टिव है, एंटीकोगुलेंट बेट्स इफेक्टिव हैं. और इसी तरह इसके अंदर जो जिंक फॉस्फाइड है, जिंक फॉस्फाइड जो है वो सिंगल डोज पॉइजन ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है. उसको जब भी ये अवेलेबल होगा तो ग्रेन बेट्स के ज़रिए ये आपको अवेलेबल हो सकता है. और ये रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ पेस्टिसाइड के साथ इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है. इसी जो है कुछ फ्यूमिगेंट्स हैं, बट कुछ नो फ्यूमिगेंट्स रजिस्टर्ड फॉर दीज एनिमल्स. इन एनिमल्स के लिए फ्यूमिगेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल या रजिस्टर नहीं है, इसलिए जब रजिस्टर है तो इसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते. ट्रैप सिस्टम है, माउस ट्रैप सिस्टम बेटेड विद पीनट बटर. जब इसको ट्रैप सिस्टम यूज़ करें तो पीनट बटर के साथ यूज़ कर सकते हैं, सनफ्लावर सीड के साथ यूज़ कर सकते हैं, लिकोराइस के साथ यूज़ कर सकते हैं. और बहुत से सिमिलर आइटम्स जो हैं जो कि घरों में के अंदर हैं, जहाँ जहाँ से ये गुजरेगा या जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठेगा तो वहाँ से ये आप उसको अप्लाई कर सकते हैं. ट्रैप सिस्टम बनाएंगे तो उसके ऊपर ही सनफ्लावर्स या बटर वगैरह लगाकर ट्रैप सिस्टम बना सकते हैं. But the shooting system is also not practical for this for the control of these animals. In the last lecture, you will watch the video of the shooting of the ground squirrel. And here is the crow. Crow is a vertebrate bird pest. As you can see in this diagram, crow is very common in everywhere, and in houses and buildings. The American common crow belongs to the same family that includes the magpie, but the crows are solid black with long wings, strong legs, thick curved bill. इसकी bill जो है curved होती है, thick होती है, wings जो हैं वो long होंगे और strong legs होती है. इसी तरह जो habitat है, फूड हैबिटेट जो है कॉमन क्रो जो है वो डिफरेंट टाइप्स की फूड्स को ईट करेगी. लाइक दे ईट पोल्ट्री, एग्स, सीक्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स, इंसेक्ट, फ्रॉग्स एंड कैरियॉन्स. दे कैन आल्सो ईट द ग्रासेस, सीड्स एंड some other foods. But the general biology of this bird is the crow is monogamous, and after mating pairs will remain together for the season. ये मोनोगोमस होते हैं और पूरा सीज़न के अंदर रिमेन एक्टिव रहते हैं, इकट्ठे रहेंगे. और कॉटशिप जो होगी इनकी स्टार्ट होगी वो अप्रैल से मई तक होती है. फीमेल्स ले 4 to 5 ब्लश एग्स एंड इनक्यूबेट देम फॉर 17 to 20 days. फीमेल जो है वो 4 to 5 एग्स को ले करेगी, उनको इनक्यूबेट करेगी 7 से 20 days तक. And the young are born stay in the nest for 30 to 35 days. जो young जो हैं वो born होते हैं, पैदा होते हैं और nest में रहेंगे 30 से 35 days तक. And the crow built its nest high in the forks of the deciduous and coniferous trees, bushes, and on the cliffs. The females lay 4 to 5 eggs. For the first week, only the female feeds them through some foods and some other resources. Later, the nestling are fed meat by both the males and females. And the nest of this bird nest are made from odd materials like papers, bones, clothes, and nails, and all molded together with mud and manure. तमाम ये जो नेस्ट जो हैं इसको आप बना सकते हैं
पेपर की मदद से, बोन्स की मदद से, कुछ क्लॉथ्स या नेल्स की मदद से, फिर उसको आप मोल्ड कर देंगे इकट्ठा मड और मिनोर की मदद से। इसी तरह जो नेस्टिंग सिस्टम जो है वो दोनों मेल और फीमेल मिलकर इकट्ठे बना सकते हैं। एंड हियर इज सम अल्टरनेटिव मेथड्स फॉर द कंट्रोल ऑफ कॉमन क्रो। In the alternative methods of the common control, we will discuss about the non-lethal and lethal method. In the non-lethal methods, the exclusions, common method, cultural method, frightening and repellents are used. And in the lethal, fumigants, toxicants, trapping and shooting system are used. In the non-lethal, non-lethal, the exclusion is generally is not practical for the most crow problem के लिए इतना practical नहीं है. Netting can be used to exclude crows from high values crops or small areas. high value crops में या small areas में के अंदर जो है आप नेटिंग सिस्टम जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. नेटिंग सिस्टम के थ्रू इसकी तादाद को वहाँ से हम ख़त्म कर सकते हैं. इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ राइपनिंग कॉर्न इन गार्डनर्स कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय कवरिंग ईच ईयर विद द पेपर कप एंड सक आफ्टर द सिल्क हैज़ टर्न ब्राउन. जब सिल्क ब्राउन में कन्वर्ट हो जाए तो उसको आप कवर कर सकते हैं पेपर कप की मदद से या फिर कुछ दूसरे चीज़ों की मदद से. एंड हेयर इज़ द कल्चरल मैथड. In the cultural method of the common crow, the alternatives or decoy foods can be used to reduce common damage. And for example, whole corn, preferably softened by water, scattered through a field, may protect newly planted corn seedling. जो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं डिके फूड्स जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं क्रो डैमेज को रिड्यूस करने के लिए. जैसे कि आपने प्रेफर करेंगे सॉफ्टन, उसको सॉफ्ट करने के लिए कौन प्रेफरली कहते हैं सॉफ्टन बाय वाटर, पानी की वजह से सॉफ्ट वगैरह करेंगे, उसको स्कैटर कर देंगे पूरे फील्ड के अंदर ताकि जो न्यूली प्लांटेड या कॉर्न सीडलिंग अपने लगाई हुई उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें. मतलब ये कि जो कॉर्न जो है उसको अपने प्रेफर किया, उसको अपने नरम कर दिया इस पानी की वजह से, उसके ऊपर पूरे जितने भी फील्ड है जहाँ पे अपने जो न्यू प्लांट्स हैं कॉर्न सीडलिंग जो है वो आप लगा रहे हैं उसको स्कैटर कर देंगे. जब भी वो इसको खाएगा तो उसकी मदद से ये कल्चर मेथड जो है इफेक्टिव है इसको रिमूव करने के लिए. एंड हियर इज़ द फ्राइटनिंग इज़ आल्सो इफेक्टिव in dispersing crows from roost and crops. Frightening devices include recorded and in the frightening the recorded distress or alarms calls of crows are used for the control of these bird. The frightening can be effective and frightening devices include recorded distress or alarms calls of crows, gas operated exploder, battery operated alarms, exploding shortage shells, and some chemicals frightening agents. Light, bright objects and noise markers are used for the control of this bird. And varying the location, intensity and types of SCAR devices improve their effectiveness. अगर लोकेशन जो है वो वेरी कर रही है, इंटेंसिटी या फिर बहुत से डिवाइसेस जो हैं वो इसकी इफेक्टिवनेस में मदद देंगी. Shotguns where permitted may improve the effectiveness of SCAR devices. शॉटगन्स जो हैं वो भी शूटगन्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं इसको रिमूव करने के लिए ताकि आवाज़ उसकी शूटगन्स की आवाज़ से ये डर के भाग जाएं. शूटगन्स मोस्टली बर्ड्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है. एंड Avitrol is registered as a lethal, but it is effective for this control of a bird. Is a lethal chemical frightening agent and is available in whole corn bait. Avitrol works by poisoning one or several birds. Avitrol जो है वो works करते हैं पॉइजनिंग की वजह से सेवरल बर्ड. इस बर्ड्स के ऊपर भी यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए हम एविट्रॉल जो है उसका इस्तेमाल करते हैं. The affected birds can then send out distress calls and behave erratically, scaring away their other birds.
इस जो अफेक्टेड बर्ड्स जो हैं जो अफेक्ट कर रहे होते हैं उसको फिर सेंड आउट कर देते हैं डिस्ट्रेस कॉल्स की मदद से। जब भी कोई आप अलार्म बजाएंगे तो वो आवाज़ की वो सुनेगा, उसकी वजह से वो वहाँ से उठ जाएगा परिंदा। इट इज़ ओनली सोल्ड टू गवर्नमेंट एजेंसीज, ये सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज को ही सेल किया जाता है, पब्लिक ऑर्डर नहीं है इसका। इट इज़ नॉट फॉर द सेल ऑफ टू द पब्लिक के लिए सेल नहीं होती है, गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गवर्नमेंट लाइक पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स और पर्सन अंडर देयर सुपरविजन्स। एंड अनदर फ्राइटनिंग टेक्निक्स And the fighting technique for the crow is a stretching cord or fine wires at interval across the field at a height about 6 to 8 feet above the ground. जो स्ट्रेचिंग कोड है या फाइन वायर्स हैं, वायर्स की वजह से हम इसको इस्तेमाल वायर्स की मदद से बेस को हम ख़त्म कर सकते हैं। ग्राउंड के ऊपर 6 से 8 फीट अबव हमने ये वायर को लगाना है, या स्ट्रेच कॉर्ड लगाएंगे या वायर्स को अप्लाई करेंगे, जिसके मदद से ये डर के यहाँ से वहाँ से भाग जाएगा फील्ड्स में से। And here is the lethal control for this bird. The toxicant here is a toxicant Starly side DRC 1339 is registered for the control of this bird, but only for use by state and federal animal damage control personnel. And the fumigants, some fumigants are also no fumigants are used for the control of this bird. And the trapping. In trapping, you will discuss about you will learn about the crows capture uninjured size, and the second method is a decoy trap. In capturing unendangered in size about size number 0 to 1 steel traps that have jar the wrapped with cloth or rubber. जब इसको ट्रैप को यूज़ करें तो अपने जार ट्रैप होना चाहिए इसे क्लॉथ के साथ और या फिर रबर के साथ उसको अपने बांध देना है और इनको सेट कर देना मोस्ट सक्सेसफुल होता है उन प्लेसेस के ऊपर या उन पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पर क्रो की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है। फिर इसे अपने बेटिंग सिस्टम बनाना है और आपने इसका लोकल लॉज को जब भी ट्रैप सिस्टम बनाना है इसके लोकल लॉज को अपने फॉलो लाजमी करना है। इस तरह जो सेकंड मोस्ट कॉमन ट्रैप जो है वो मतलब इसके इस्तेमाल वो डिकॉय ट्रैप है। इट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल इन विंटर वैन नेचुरल फूड्स और स्कार्स नेचुरल फूड जो हैं वो बहुत कम होती हैं तब ये सक्सेसफुल होता है इसको कैप्चर करने के लिए। दीज ट्रैप्स आर यूजली 8 to 10 फीट्स एंड 5 to 6 फीट हाई। ये ट्रैप जो है वो 8 से 10 फीट जो है वो बनाया जाता है या फिर स्क्वायर में और 5 to 6 फीट जो है वो हाई होता है। And shooting can be helpful as a dispersal or frightening technique, but is generally not effective in reducing overall crow numbers. शूटिंग जो है वो इफेक्टिव है उसको फ्राइटनिंग के लिए डिस्पर्स करने की टेक्निक के लिए बट इतना इफेक्टिव नहीं है। बहुत सारी जगह तादाद हो क्रोज़ की वहाँ पर उसको रिड्यूस करने के लिए इतना इफेक्टिव नहीं है। अगर कोई थोड़ी तादाद हो कम या 2-4 हो तो उसको हम फ्राइटनिंग के थ्रू डिस्पर्स हम कर सकते हैं। क्रोस कैन बी शूट बाय एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, उसको हम किसी भी वक्त शूट कर सकते हैं, वो नाइट हो या डे हो, मोस्टली नाइट डे में होते हैं। इफ़ दे आर काजिंग डैमेज, अगर वो डैमेज को काज कर रहा होता है तो उसको हम शूट कर सकते हैं। Here is some trap system for the control of this bird like common crow. And the house sparrow, here is the description of the house sparrow. The house sparrow, the beak of the house sparrow, black chin and chest is and chest white cheeks होती हैं, short legs होती हैं, brown बैक जो कि ब्राउन होगी और ब्लैक स्ट्रीकिंग होगी। इस तरह ब्राउन पैचेस होते हैं बिहाइंड द आइज़ और इसी तरह जो है कॉमन क्रो जो है ये मेल और फीमेल डिस्टिंक्टिव ब्लैक बिब होंगी और फीमेल यंग जो होंगे वो डिफ़िकल्ट होंगे उनको डिस्टिंग्विश करना नेटिव स्पैरोज़ की निस्बत। दे हैव अ प्लेन डिंगी ग्रे ब्रेस्ट, the black bib and the chest nest wing covers are first sign of the male plumage to appear on the young birds and occurring within weeks after they leave the nest. And here the house sparrow is found in nearly every habitat except heavy forest, alpine and desert environment है। desert environment में या फिर heavy forest के अंदर इसकी तादाद बहुत कम होती है और ये प्रेफर करते हैं मैन अल्टर्ड हैबिटेट को जो इंसानों ने
तब्दील किया और बदल किया उस हैबिटेट को ये प्रेफर करते हैं। और कॉमनली जो कॉमन अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर ये इस्तेदाद जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एंड हियर इज सम फूड हैबिटेट ऑफ द क्रॉप ऑफ द कॉमन स्पैरो। एंड द फूड these birds are primarily grain eaters, ये grain eaters को खाएंगी और plant materials को खाएंगी, लाइक grain है, fruits हैं, seeds हैं एंड गार्डन प्लांट्स हैं। और इनको ये 96% तक the plant materials, grain, fruits, seeds and garden make up 96% of the adult diet. The remainder is animal food. Feeding habitat of nestling are almost reserved in the day. Eat 68% animal matter and only 32% plant materials. तकरीबन ये 68% जो होंगे वो एनिमल मैटर्स को खाते हैं, 32% जो हैं वो प्लांट मटेरियल्स को खाते हैं, और 96% जो है वो अडल्ट की वो जो फीड है वो ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड गार्डन प्लांट्स हैं। 96% ये हैं, 68% जो है वो एनिमल मैटर हैं और 32% जो हैं वो प्लांट मटेरियल्स हैं। इसी तरह अर्बन हैबिटेट्स के अंदर गार्बेज हैं, ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये रिफ्यूज़ हैं, उनको फ्रॉम फास्ट फूडिंग रेस्टोरेंट्स, वहाँ पर ये भी ये स्पॉट, अगर वहाँ पर रेस्टोरेंट्स हों तो यहाँ पर भी आके अपनी फूड को ये फाइंड कर सकते हैं। Here is some common biology of a general biology of इस bird. Breeding can occur in any month, किसी भी मंथ में ये ब्रीडिंग इसकी हो सकती है, बट इज़ मोस्ट कॉमन इन मार्च थ्रू द अगस्त। कॉमन जो है वो मार्च से अगस्त तक होती है। दोनों सेक्सेस जो हैं वो फीड कर सकते हैं, टेक केयर कर सकते हैं यंग वन की, और फीमेल जो है वो डज मोस्ट ऑफ द ब्रीडिंग, ज़्यादा ब्रीडिंग जो है वो फीमेल देगी। इस तरह ये 7 एग्स जो है वो ले करेगी और इनको वेट करेगी 10 to 14 डेज़ तक, और नेस्ट के अंदर ही वो जो है लिटर जो है वो 15 डेज़ तक रहेगा और वहाँ तक वो उसको फीड करेगा, और आफ्टर 2 वीक्स तब भी ये फीड कर सकता है। And here is some non-lethal methods. In non-lethal methods, exclusions and some other cultural methods and other some resources are included. But in the exclusions method, you will learn about covering and screening all entrance. आपने जो भी entrance जहाँ पे भी होगी फील्ड के अंदर जहाँ पे भी कवरिंग है उसको अब जो भी फील्ड है उसको आपने कवर कर देना है एंट्रेंस से, उसको स्क्रीनिंग करनी है। इसी तरह कुछ साइंस होंगे, लार्जर अगर ओपनिंग होगी उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे पोल्ट्री मैशेस की मदद से। अगर ओपनिंग ज़्यादा बड़ी है तो पोल्ट्री हाउसेस जो हैं, ये फीडर जो हैं उसको स्क्रीन कर सकते हैं स्पैरो को मूव करने के लिए। साइंस है, साइंस शुड बी अटैच्ड फ्लैट अगेंस्ट बिल्डिंग सो एज नॉट टू प्रोवाइड रूस्टिंग स्पेस। ये रूस्टिंग जो स्पेसेस है उसको प्रोवाइड नहीं किया जाता। इसी तरह Signs should be attached at flat against building so as not to provide roosting space. Spaces between signs and building should be screened or blocked off. अगर spaces होंगे साइन और बिल्डिंग के दरमियान तो आपने उसको स्क्रीन करना है या फिर ब्लॉक कर देना है। लैजेस हैं जैसे कि लाइक दोज फाउंड ऑन ओल्ड बिल्डिंग शुड बी फिटेड विद द स्लैंटेड मेटल्स और वुडन बोर्ड। आपने उसको वुडन बोर्ड की मदद से या स्लैंटेड मेटल्स की मदद से आपने उसको फिट कर देना है। और इसी तरह जो है स्पैरो कैन बी केप्ट फ्रॉम रूस्टिंग, स्पैरोस को जो है वो हम केप्ट कर सकते हैं रूस्टिंग से। एंड दैन नेटिंग सिस्टम में नेटिंग सिस्टम बनाया जाता है इसके लिए, इसको कैप्चर करने के लिए। जैसे घरों में भी कर सकते हैं, हम नेट बना सकते हैं इसको कैप्चर करने के लिए। एक वायर का या एक रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, या फिर सिंपल जो है वो नेटिंग बना सकते हैं। ये बर्ड नेटिंग जो है प्रैक्टिकल होता है सिचुएशन में जब इसकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, या फिर ये ऐसे बहुत से क्रॉप्स हैं, जैसे ग्रेप्स हैं या फिर या क्रॉप्स हैं इनके अंदर ये तादाद बहुत ज़्यादा होती है, फिर वहाँ पर नेट सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी ओपनिंग को आप खाली ना छोड़ें, अगर वो ओपनिंग खाली छोड़ देंगे तो ये वहाँ से अंदर एंटर हो जाएगा। फनल ट्रैप्स हैं, फनल ट्रैप्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं इसको कैप्चर करने के लिए। It is non-lethal method in cultural method you will learn about the destructions of roasting। अब रोस्टिंग को डिस्ट्रक्शन की रोस्टिंग की डिस्ट्रक्शन करके अब इसको भी रोक सकते हैं। और नेस्ट डिस्ट्रक्शन, इसका जो नेस्ट जितनी भी ये नेस्ट बना रहा है उसकी डिस्ट्रक्शन करके भी अब इसको ख़त्म कर सकते हैं। नेस्टिंग मटीरियल जो है
वो भी शुड बी कलेक्टेड एंड रिमूव्ड टू मेक इट हार्डर फॉर द बर्ड्स टू फाइंड मटेरियल्स और फ्यू न्यू नेस्ट। आपने जो भी नेस्टिंग मटेरियल ये इस्तेमाल करता है आपने वहाँ से उसको नेस्टिंग सिस्टम, अगर वो छोटे छोटे से जो तिनके होते हैं, तिनके लेकर फर्स्ट ये नेस्ट बना रहा है तो उसको तिनके वहाँ से वो भी जो मटीरियल्स जो है आप वहाँ से रिमूव करते हैं ताकि उसके लिए मुश्किल हो जाए नए नेस्ट को बनाने के लिए। पुराना नेस्ट आपने रिमूव कर दिया, नए नेस्ट बनाने के लिए वो जो मटीरियल को यूज़ करेगा उस वहाँ से मटीरियल को आप रिमूव कर सकते हैं। और इसी तरह आप रिमूव कर सकते हैं हेज रोज को रूरल एरियाज़ के अंदर, और जिसकी वजह से आप इसकी तादाद को कम कर सकते हैं। अनदर मेथड ऑफ नॉन लिथल मेथड इज़ अ फ्राइटनिंग। Frightening is in frightening avitrol is registered as an area repellent because it causes the affected birds to react so violently that the remainder of the flock is frightening out of the ट्रीटेड एरिया। जिस एरिया को आप ट्रीट कर रहे होते हैं वहाँ पर आप एविट्रॉल रेपिलेंट का इस्तेमाल करेंगे ताकि किसी बर्ड्स को आप वहाँ से रिमूव कर सकें। इसी तरह डिस्टर्बिंग नॉइसेस हैं, बहुत सारी नॉइसेस को आप इस्तेमाल करेंगे इसको, जैसे कि ऑटोमेटिक लाइन एक्सप्लॉयडर है और बहुत सारे शूट गन्स हैं या शेल्स हैं, इसको आप इस्तेमाल करेंगे, यानी वॉइस का इस्तेमाल, किसी भी किस्म के वॉइस का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से ये जो है ये वहाँ से ख़त्म हो सकता है। विजुअल स्केयर क्रॉज है, आप इसको इस्तेमाल करेंगे इसको रिमूव करने के लिए। इसमें इंटरमिंगलिंग है, अल्टरनेटिंग मेथड्स हैं जो कि इस्तेमाल करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। In the repellents, you will learn about the repellent taste aversion agents हैं, गैस्ट्रेटरी एंड टेस्ट एवर्जन एजेंट्स हैं, जैसे कि इन एजेंट्स में मैसूरोल्स हैं जो कि इस्तेमाल किया जाता है, रजिस्टर्ड है वेरियस बर्ड्स को रोकने के लिए, जैसे स्पैरोज हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं आप चेरी के ट्रीज के ऊपर या फिर किसी और बर्ड्स क्रॉप्स के ऊपर। ये रेपिलेंट जो है इसको अपने स्प्रे को क्रॉप्स के ऊपर हार्वेस्टिंग जब भी अपने अप्लाई करना है तो हार्वेस्टिंग टाइम से पहले करना है, मतलब जब भी हार्वेस्टिंग का टाइम हो तो जब क्रॉप पे अप्लाई करने लगे हैं तो हार्वेस्टिंग का टाइम से पहले लें, अदरवाइज़ ये रेपिलेंट जो है वो क्रॉप्स को भी डैमेज कर सकता है और बहुत सारी क्रॉप्स को भी डैमेज करेंगे एज वेल एज ह्यूमन्स के लिए भी बहुत खतरा बन सकते हैं। और फैक्ट्री एजेंट्स हैं, फैक्ट्री एजेंट जैसे कि नेफ्थलीन है, ये रजिस्टर है इसको स्पैरो को रिमूव करने के लिए और दूसरे बर्ड से मैमल्स को रिमूव करने के लिए जो है वो नेफ्थलीन जो है रजिस्टर किया गया है। इसके ड्रॉबैक्स ये हैं, ये केमिकल जो है अगर इसको अप्लाई करते हैं हाई रेट्स के ऊपर तो ये केमिकल जो है वो डिजीज़ भी काज कर सकता है और बहुत सारे प्रॉब्लम भी काज कर सकता है। अनप्लेजेंट ओडोर इसकी होगी और जिसकी वजह से ह्यूमंस को लिए नुकसान हो सकता है। टेक्टाइल कंट्रोल मेजर्स हैं, टेक्टाइल कंट्रोल मेजर जो है उसमें स्टिकी बर्ड्स ग्लूज़ हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं। स्टिकी बर्ड्स ग्लूज़ में पॉलीथीलीन और पॉली ब्यूटालीन्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो मोस्ट इफ़ेक्टिव है थ्रू आउट द ईयर और इसको आप ज़्यादातर में भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको सील भी कर सकते हैं जिस जगह पे आपने इस्तेमाल करना है। और मोस्ट इफेक्टिव रेपेलेंट जो है वो पार्कोपाइन मतलब लॉन्गर टाइम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, केमिकल्स के बजाय लॉन्गर टाइम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो है पार्कोपाइन वायर्स। पार्कोपाइन वायर्स जो है जैसे कि नेक्सालाइट है, इसको इस्तेमाल करेंगे बर्ड्स को रोकने के लिए, इस तादाद को ख़त्म करने के लिए, और बट ये एक्सपेंसिव होता है लेकिन इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है, बट ये एक्सपेंसिव है। It is a lethal method. It's not a non-lethal. It's a lethal method. It's a non-lethal, but and the lethal method. In the lethal method, traps are used: funnel traps, automatic traps, and trigger traps. The most widely used method है स्पैरो इन पॉपुलेशन को रोकने के लिए ट्रैपिंग सबसे अच्छा सिस्टम होता है, घरों के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अनहार्म्ड है, इससे आपको खतरा नहीं हो सकता, नुकसान नहीं हो सकता, इजी है, मैं इसको बनाना भी इजी है, इसको अप्लाई करना भी इजी है। इसकी टाइप्स हैं फनल है, ऑटोमेटिक एंड ट्रिगर्ड है। फनल ट्रैप्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप्स अवेलेबल, they are the most easily entered of any trap but sparrows can escape from the with ease। इसको आप ये मोस्ट इफेक्टिव है लेकिन इसमें से समटाइम जो स्पैरो वो रिमूव नहीं कर भी सकती है। ऑटोमेटिक ट्रैप्स हैं, ऑटोमेटिक ट्रैप जो है वो काउंटर बैलेंस्ड मल्टी कैच ट्रैप्स है, बर्ड जो इसके अंदर इसके कंपार्टमेंट के अंदर दाखिल होगा, उसके फिर ड्रॉप नीचे गिर जाएगा और लोड कंपार्टमेंट में जाएगा, वहाँ से ये रिमूवर निकल नहीं सकता। फनल ट्रैप से निकल सकता है लेकिन ऑटोमेटिक ट्रैप में कंपार्टमेंट बने होते हैं, वहाँ से ये नहीं निकल सकता। The decoy compartment then move back into the place ready for another victim। फिर अपने जो decoy compartment है दोबारा फिर उसको प्लेस पे रख देना है किसी दूसरे वर्ड्स के को कैप्चर करने के लिए।
and the trigger traps are limited by the number they are can catch at one time. एक ही टाइम एक ही को कैप्चर कर सकता है, और समटाइम होता है इसको नॉट दे आर नॉट ऑटोमेटिक एंड रिक्वायर अ वाचर टू टेंड द ट्रैप्स एंड स्प्रिंग दैम द एट द प्रॉपर मोमेंट। इसको अपने अच्छे से टाइम भी लेगा और उसको देखने के लिए आपको ध्यान भी लगाना पड़ेगा। शूटिंग है, शूटिंग जो है इसके लिए अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा इसके लिए टॉक्सिकेंट है, फैंथियोन है, डिटर्जेंट्स हैं टॉक्सिकेंट इस्तेमाल करते हैं, शूटिंग्स हैं, अदर मेथड्स हैं। अदर मेथड्स में कैट वॉक्स हैं, डिवाइसेस है जो कि आपने इस्तेमाल करनी है इसको रिमूव करने के लिए। हियर इज सम ट्रैप्स, फनल ट्रैप्स, एंड इट इज़ द ऑटोमेटिक ट्रैप्स दैट इज़ यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ द बर्ड स्पैरो। एंड ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।